Hello friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the housing societies as well as managing committee members. आपको जैसे पिछले वेबिनार में एजीएम के वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि एजीएम जो करना है वो सेक्शन 75 ऑफ द एमसीएक्स एक्ट के अंदर में करना होता है और वो आपको करना था 30 सितंबर के पहले। और अगर आप उसे नहीं करते तो मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालिफिकेशन और डीबार का प्रोविजन है फॉर 5 इयर्स। अभी सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किन्हीं कारणों से ये एजीएम की तारीख व ऑडिट की तारीख 3 महीने आगे बढ़ा दी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 31 जुलाई तक आपको ऑडिट फिनिश करना था, अब वो 3 महीने आगे बढ़ा के अक्टूबर 31 तक कर दिया हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज नाउ एक्सटेंडेड द कंडक्टिंग ऑफ एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग फॉर FY 21-22 that was originally supposed to be held on or before 30th September is now extended up to 31st December. The Maharashtra government order was dated 29th September. लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर निकला है, कई सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ये ऑर्डर निकला होगा, पर अल्टीमेटली ऑर्डर इफेक्टिव हो गया हुआ। मेजर ऑफ द सोसाइटीज दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड देयर एजीएम, पर जिन्होंने नहीं कंडक्ट किया हुआ है उनको ये रिलीफ तो मिल ही गया हुआ है। और जो प्रोसिक्यूशन और जो पेनल्टी लगनी थी, 5,000 रुपए की पेनल्टी थी, और प्रोसिक्यूशन में ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन और डिबारमेंट था फॉर 5 इयर्स। अब उसमें से वो छूट मिल के 31 दिसंबर तक चला गया हुआ है, उसके बाद में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर 31 दिसंबर तक गया हुआ है तो बहुतेक ये एक्सटेंशन शायद अगले साल भी लागू पड़ जाएगा, बिकॉज आपके पास समय कम रहता है 2 एजीएम के बीच में। अभी कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य प्रश्न ऐसे आते हैं कि मैंने तो एजीएम का नोटिस दे दिया हुआ था और हमारी एजीएम 28 या 29 या 30 सितंबर को करना था, तो क्या हम ये एजीएम कैंसिल कर सकते हैं? क्या हम इसे डिले कर सकते हैं अप टू 31st December? Well, the answer is yes, you can do it. You can cancel the AGM and you can delay it. The reason is simple, that the authority to decide the venue and the date and the time to conduct the AGM is given only and only to the managing committee. So they are the trustees of the society. They are the elected representative under section 73(1) read with 154(b)(1)(9). So now when they are the authority, then they can of course change the date and timing and the venue as per their convenience. But proper prior notice has to be given, that is essential. एक और प्रश्न ऐसा आता है, कई क्वेश्चंस आते हैं कि हम सोसाइटी के एजीएम यानी जनरल बॉडी को में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं करते, क्या वो मैंडेटरी है? तो सरकार ने यानी कोऑपरेटिव कमिश्नर ने, नॉट एक्चुअली सरकार कोऑपरेटिव कमिश्नर पुणे ने एक सर्कुलर निकाला था 2010 को। दैट सर्कुलर is not mandatory. It is in the nature of a request to all the societies to video record the AGM. So does it have any mandatory value or compulsory value? No, it does not have. It is only having a persuasive value. It is only a circular issued by the Pune Commissioner. It is not having any act or rules that prescribes this particular thing. So if a issue which is described in the act, then it becomes mandatory, then it becomes compulsory. So ये सर्कुलर किस चीज के लिए था? वीडियो जनरल बॉडी का वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, just to maintain simple transparency and to facilitate recording or preparing minutes of the general body meeting. जनरल बॉडी मीटिंग का मतलब हो गया एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो गया और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो गया। So video recording would become mandatory only if it forms part of the MCS Act and rules. We will be not taking this lecture
in extensive format because we have already covered AGM issues 2 times, and it is already there on our website, the video recording. So now, with the help of our other friends, and advocate, lawyers, and other experts on the webinar today, we will take up issues, question answers, and we'll proceed accordingly. So anybody has any questions may raise up their hands and turn on their videos and ask their questions. Myself and advocate Ashish Dubey, and if anybody else also has their opinion, we are welcoming them also to answer. There are other experts and lawyers also on this group who will answer those questions. If you have any doubts about the AGM part, anything which is confusing, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, मिनट्स नहीं बन रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, कहाँ पे तकरार करना है, कहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह करना है, वी विल बी ऑल टेकिंग इट. मिस्टर प्रसाद देगे, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. मुझे पूछ रहा था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जो बात किया, ये मैंडेटरी तो नहीं है, ये बात आप जब आपने बताई अभी, लेकिन मुझे एक करना था कि अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, और जो बाहर लंबे रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनका व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो इसके बारे में दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए. हमने हमारी सोसाइटी में अभी 29 तारीख को हो गई मीटिंग, तो मैंने भी बताया था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, मांगता तो खर्चा मैं करूंगा, तो भी फिर भी उन्होंने अपोज किया और बोले कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. सो दिस वाज रिडिकुलस. तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जो दायित्व है वो सोसाइटी का है. ये खर्चे की बात है तो भी हम करने को तैयार है. फिर भी अगर उन लोगों को क्या है, हमारी सोसाइटी में 406 लोग है, तो हमको जो चाहिए था कि बहुत से लोग बाहर रहते हैं. मेरा क्वेश्चन है कि वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने ना क्यों किया, हमारे चेयरमैन ने और मेंबर ने, कमेटी मेंबर ने. बोले जरूरत नहीं है, उसको खर्चा है, तो मेरा खर्चा मैं करता हूं, तो भी बोले कि नहीं हमको नहीं करना है. सो व्हाट शुड वी डू? बहुत से मेंबर को लगता था कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए और हम भी उसमें, जैसा आज मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं वैसे उस टाइम भी हर एक मेंबर बात कर रहा है. सर हाँ बताओ ना, अभी इसके बारे में क्या करना पड़ेगा आगे, प्लीज. आपका प्रश्न हो गया सर? हाँ हो गया होगा. ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लो, मैं आपको जवाब देता हूँ, या तो दुबे साहब जवाब देंगे आपको. म्यूट हो गया, मैं म्यूट किया. अभी एजीएम करने का जो दायित्व है वो सोसाइटी का होता है, इंडिविजुअल का नहीं है. अगर इंडिविजुअल को एजीएम की रिकॉर्डिंग करना है तो उसको डेप्यूटी रजिस्ट्रार से अर्जी डाल के परमिशन लेना होगा, तभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है. या तो ये अधिकार सोसाइटी का चेयरमैन भी दे सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए. वीडियो रिकॉर्डिंग करना जनरल बॉडी के मिनट्स का ये जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को है, यानी मैनेजिंग कमेटी को. अगर आपको खुद पर्सनली रिकॉर्ड करना है या तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार से आप परमिशन ले लो, रिटर्न परमिशन ले लो, या तो चेयरमैन से आप. चेयरमैन ने ना क्यों किया कि नहीं करने का रिकॉर्डिंग? ये क्या बात है? ये तो गला दबाना है लोकशाही का. ना क्यों किया या जो भी कुछ किया उसका प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है. जो कानूनी पोजीशन है क्या करना पड़ेगा, ना किया तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको? जैसे मैं आपको बताया, आप परमिशन ले लो पहले से, या तो चेयरमैन से परमिशन ले लो. चेयरमैन ही नहीं दे रहा है ना, उसको नहीं चाहिए, तो बात करने के लिए नहीं चाहिए कोई. उनका ग्रुप ही बैठेंगे और उन लोग डिस्कस करेंगे और छोड़ देंगे. ऐसी बात हो गई है. आप रजिस्ट्रार से परमिशन ले लो. कंप्लेंट रजिस्टर को कर सकते हो क्या इसके बारे में? ऐसी आप कंप्लेंट करिए, आपकी मर्जी है. कंप्लेंट आप जहां मर्जी आए चाहे कर सकते हैं, उसका कोई बंदिश नहीं है. करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसे बारे में, एक छोटी बात है वीडियो का रिकॉर्डिंग करना, कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये भी इसके लिए भी ना करना, ये बात क्या उसके लिए क्या कायदा नहीं है? कुछ नहीं है वैसा कि नहीं करना, तो कोई करेगा ही नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसा कायदा भी नहीं है किधर. तो ये सब ये मनमानी कारोबार है. ठीक है, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का कानून कायदा आपके ऊपर लागू पड़ता है. आपको 2 ऑप्शन बताया मैंने, या तो चेयरमैन का परमिशन लो या तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का परमिशन लो. ओके, थैंक यू. इसके अलावा और कोई चारा नहीं है. ठीक है, बराबर है आपका. एडवोकेट सिंह साहब, मिस्टर विजय सिंह, एडवोकेट विजय सिंह यादव, आप पूछिए अपना प्रश्न प्लीज. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एडवोकेट यादव जी.
एक्चुअली आपने बताया कि एजीएम जो है 30 सितंबर से पहले होना चाहिए, एंड एज पर बाईलॉज 94 देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ द एजीएम टू बी कंडक्टेड मींस बियॉन्ड टू द 30th September, and you say that it Yes, is sir. to this is you can ask the permission for extension, but the already bylaw says there is no further extension. It was previously it was given the extension for 1 month or 2 months, so you can have from the registrar, but as per the bylaws 94 now it is stopped, and beyond 30th September there is no further extension on the conducting the AGM. Now what is to be done for that? Sir, the Maharashtra government has, by an order dated 29 September 22, it is an order which has granted extension of conducting AGM by 3 months. So hence now your AGM you can conduct up to 31st December 2022. This is only for this financial year, that is financial year 21-22 only, not for the next FY. तो जो सेक्शन 75 में लिखा हुआ है, don't go by the bylaws. The act and the rules will supersede the bylaws always. So the act says on or before 30th September, and the act will be superseded by a government order. So the government order as of today is 31st December 2022 for conducting the AGM. जिन्होंने कर लिया है बात खत्म हो गई उनकी, जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनको एक्सटेंशन ये मिल गया हुआ है। जिनका एजीएम लास्ट डेज में रखा हुआ था 29, 30, 28 वगैरह, वो अगर चाहते आज तो खैर पहले अक्टूबर हो गई है, वो अगर चाहते तो वो एक्सटेंशन अपना एजीएम कैंसिल करके एडजर्न करके 31 दिसंबर तक कर सकते थे। जिन्होंने किसी कारणवश नोटिस नहीं इश्यू किया, कुछ लोगों ने एजीएम कर लिया, कुछ लोगों के एजीएम लास्ट डेट्स पे रखे हुए थे, जैसे 28 है, 29 है, 30 सितंबर को, कुछ लोगों ने नोटिस तक नहीं इश्यू किया, तो उन सारा का सारा इट सरकमवेंट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्डर which has allowed a extension of conducting AGM up to 31st December. So, sir, you say that it is the letter issued on 22nd September of 2022. 29 September. Sorry, 29 September of 2022. You mean to say? Yes, sir. Then there is what is the procedure left for the AGM? See, 15 days before you are giving the means 14 days time you are giving to the members for the going through the agenda points, and which is now which way it is going. I am not understanding the government is taking what and when. Some people have done it, some people have not done it, and that could have been given quite long before. Even my society is not at all. You cannot question my society is not at all following any of the rules and regulations. Well, it is a usual thing with most societies कि वो अपना कानून कायदा खुद का मनमानी का मन मर्जी का करते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। डिस्प्यूट इसीलिए रेज हो रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर में, खास करके क्योंकि इतने ढेर सारे फ्लैट्स बनते जा रहे हैं अलग अलग महाराष्ट्र के सिटीज में। एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन की जगह में अब सोसाइटीज बनती जा रही है, तो ये सारे डिस्प्यूट्स आने ही आने वाले हैं। इट इज बिकम लिटरली अनमैनेजेबल इवन फॉर the government to handle this thing. So hence they say it is evident now कि एजीएम की घोषणा आप 1 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने लास्ट मोमेंट पे किया ताकि वो सोसाइटीज जिन्होंने एजीएम के नोटिस तक नहीं बांटी थी, जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाते अपने ऑफेंस और वायलेशंस के कारण, अब वो सारा का सारा सर्कमवेंट हो गया, माफ हो गया, और उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई 31 दिसंबर 2022 तक करने की है। तो ओके सर, Thank you, Advocate Yadav ji, for joining in. Next question is by Shiv Prasad Shetty. हाय हेमंत जी, मेरा क्वेरी एजीएम से रिलेटेड है। हमारा सोसाइटी में फॉर मल्टीपल इयर्स एजीएम नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी और समटाइम्स द चेयरमैन। सो इट्स अ स्मॉल सोसाइटी, इट्स अ 16 यूनिट सोसाइटी। सो उसमें काफी सालों से नहीं हुए। अभी पिछले वीक हम लोगों ने एजीएम कंडक्ट किया, तो उसमें हमारा मेजर पॉइंट ये था कि जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उसको स्क्रैप करते हैं और न्यू फॉर्म करते हैं जो कि टाइम दे सके, बिकॉज इट्स बीन लाइक मोर देन 7 or 8 years एटलीस्ट
जहां जब से एजीएम नहीं हुआ है, एंड द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो गेटिंग पुअरर। तो उस कारण से हम लोग अभी आगे जाके रीडेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट में डालने के लिए। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो अवेलेबल रहे। तो उस एजीएम में हम लोगों ने कुछ नए मेंबर्स को ऐड किए हैं जो अवेलेबल रहते हैं। तो अभी मेरा रिसेंटली ऑडिटर से बात हुआ, तो उन्होंने जो सोसाइटी के फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं उससे बात हुआ, तो उनसे पता चला कि वी कैन नॉट डायरेक्टली इलेक्ट वन फॉर द न्यू बॉडी, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय एन इलेक्शन ऑफिसर। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि ये जो इलेक्टेड बॉडी है वो वैलिड रहेगा या उसको स्क्रैप करना पड़ेगा या फिर अलग कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एडवोकेट दुबे साहब, आपका कोई ओपिनियन इसके बारे में? यस सर, गो लास्ट इतने साल में एजीएम हुआ ही नहीं, वो तो इटसेल्फ वायलेशन ऑफ लॉ है। बट अगर अब आप लोग सोच रहे हैं कि एक नई जनरल बॉडी बना के और इस कमेटी को कंटिन्यू करें, और आपको इलेक्शन ऑफिसर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, भले छोटी सोसाइटी है तो, क्योंकि पास्ट की चीजें इतनी मैस हो चुकी हैं ऑलरेडी आपकी कि जो नई कमेटी बनेगी उसके ऊपर पिछला बर्डन जरूर रह जाएगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन कीजिए टू अपॉइंट दिस इलेक्शन ऑफिसर for your society. He will interfere and he will continue the work for your society. Once he will elect the committee, then वो committee फिर continuation में जा सकती है as per the bylaws जैसे भी हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन करनी है आपके वार्ड के डिप्यूटी रजिस्ट्रार को, और मेंशनिंग द थिंग्स कि जो भी आज तक का जिस हिसाब से हुआ है, आपके यहाँ पे कमिटी थी नहीं, या थी तो वो बराबर काम नहीं कर रही थी, और एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है, और यू वांटेड टू इलेक्ट अ न्यू कमिटी, उनके गाइडलाइन के हिसाब से फिर आप एक नया मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके यहाँ पे नए कमेटी में भी कोई रेडी नहीं है, जैसा आपने बताया लोगों के पास टाइम नहीं है और कोई भी चेयरमैनशिप या सेक्रेटरीशिप लेने के लिए रेडी नहीं है, तो आप कोई भी एक मेंबर ये एक लेटर बोल दीजिए या कंप्लेंट बोल दीजिए, एप्लीकेशन बोल दीजिए, डिप्यूटी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन कीजिए टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा आपके सोसाइटी में, वो सारा काम मैनेजिंग कमेटी का हैंडल करेगा, और उसके द्वारा फिर आपका एजीएम से लेके जो भी सोसाइटी के बायलॉज हैं वो फॉलो किए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आशीष जी। सो उसमें जस्ट एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा मेरा, कैन आई आस्क? हाँ सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हम लोग ने लास्ट वीक जो अपॉइंट किए हैं नए बॉडी, तो वो वैलिड नहीं रहता इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो? नहीं, अपॉइंट कैसे किए हुए हैं? ऐसे मन से अपॉइंट कर दिए हैं या वोटिंग प्रोसेस? एजीएम हम लोग ने किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 16 में से 13 मेंबर्स अवेलेबल थे। तो एक ही पर्सन का 3 फ्लैट्स है, तो उसको हम लोग 3 यूनिट्स काउंट करते हैं। तो वो पर्सन अवेलेबल नहीं था, वो फैमिली अवेलेबल नहीं था, बाकी सारे लोग अवेलेबल थे। और यूनानिमसली हम लोग ने जो 3 अवेलेबल है उनको जो टाइम दे सकते हैं उन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। व्हाट आई अंडरस्टूड शिव प्रसाद जी कि अभी तक जो भी कमेटी आपके बिल्डिंग में बनी थी वो कोई लॉफुली नहीं बनी थी, मतलब ऐसे ही उठ के आप लोगों ने बना दिया, आप चेयरमैन बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ, आप ट्रेजरर बन जाओ, अपन मिलके चलाते हैं, इस तरीके से चल रही थी। बट ओल्ड वन आप बोल रहे हैं कि नया वाला? नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। नए वाले में भी आप लोगों ने इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो किया नहीं है, विदाउट इलेक्शन आपने कमेटी बना दी है, तो दैट इज नल एंड वॉइड। तो आपको पहले तो इलेक्शन करवाना है सोसाइटी में, और उस इलेक्शन के लिए आपको इलेक्शन ऑफिसर लगेगा जो कि प्रॉपर वे में इलेक्शन करवाएगा, और उसके बाद जो कमेटी फॉर्म होगी वो बाय लॉ के हिसाब से आपकी परफेक्ट चलेगी। फिर अभी जो आप कमेटी बोल रहे हैं वो तो आपस में सहमति करके, ठीक है भाई ये देख पाएंगे तो आप चेयरमैन बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ, ये ऐसे नहीं चलता। ये सोसाइटी जो है इस तरीके से नहीं चलती है, आपको प्रॉपरली इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके से आप लोगों ने कमेटी बनाई हुई है उसके लिए हुए सारे डिसीजन नल एंड वॉइड रहेंगे, जीरो पे जाएंगे, स्क्रैप कर देंगे, एंड सोसाइटी फॉल्ट में आएगी। तो अर्लियर तो आपको इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन के लिए आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन कीजिए, वो पूरा अरेंजमेंट करके देंगे। और अगर सोसाइटी में कोई भी ये सारे जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है, तो आप फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन कीजिए फॉर अपॉइंटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर आके सोसाइटी का सारा काम संभालेगा, और सोसाइटी को वो पे करना होता है उसके लिए जो भी एक अमाउंट होता है। तो कोशिश कीजिए कि और ये इलेक्शन का प्रोसेस कितना लॉन्ग रहता है सर, एनी आइडिया?
वो पूरा आपको लंबा प्रोसेस है। हमने इस पे पूरा एक वेबिनार किया हुआ है हेमंत सर ने, आप वो अगर सर्च करेंगे तो पूरे कंप्लीटली आपको डिटेल्स मिल जाएंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Mr. Shetty, I will also like to add to what Advocate Ashish has said. हाँ सर। आपने ये भी बताया अपने दोस्तों के कि आपकी सोसाइटी शायद रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में जाना चाहती है। यस यस। अब रीडेवलपमेंट के प्रोसेस के समय जब वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट जब तो साइन होगा, तो उसलिए उसको कहते हैं कानून में ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मैनेजिंग कमेटी। ओके ओके। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब ये हुआ कि इट शुड बी ड्यूली इलेक्टेड। ड्यूली इलेक्टेड का मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्शन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर जिसको टिपिकली कहा जाता है, वो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा कि मैंने अनिल को, सुनील को, सुरेश को, रमेश को इलेक्ट किया हुआ है, इस कमेटी के गठित में करता हूं। तो ये फला फला मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी में गठित, उसका ये इलेक्शन रिपोर्ट लगेगा बिफोर द मैनेजिंग कमेटी बिकम्स लीगल। और उस रिटर्निंग ऑफिसर के नेतृत्व में नोटिस के अंडर में इलेक्शन के बाद में वो एक दूसरा मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कॉल करेगा। वो कॉल करने का काम भी रिटर्निंग ऑफिसर का ही है, और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग की नोटिस और सही वो रिटर्निंग ऑफिसर का होगा। उस मीटिंग में सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो चुने गए हैं वो प्रेजेंट होंगे, और उस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आप अपना चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को अपॉइंट करोगे। उसका एक सर्टिफिकेट आएगा। वो सर्टिफिकेट के लेके आप बैंक में जाओगे, खाता ओपन करोगे। उसके पहले आप खाता ओपन नहीं कर सकते। मतलब लाइक हम जैसे बनिए की दुकान चलाने का सोचते हैं, सोसाइटी हम वैसा नहीं चला पाएंगे। अधिकार होना चाहिए, नहीं तो क्या है सारा क्रिमिनल साइड में चला जाता है कि भाई चीटिंग में चला गया, अधिकार नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हो। आप ये ध्यान रखें कि आज जनरल बॉडी में, आज जनरल बॉडी में आपस के सहमति में आपने कुछ भी कर लिया, लेकिन कल उठ के अगर कानून की कोर्ट में जाता है, कानून कचहरी में जाता है, तो उस समय ये सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है। आप सोसाइटी में से आपस में ही रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। जैसे आपके 16 मेंबर की सोसाइटी है, उसमें से एक किसी को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दो। ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसके लिए, एक दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है। कुछ 700, 500 से 800 रुपए की बीच में फीस है। ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाता है। उसी को आप रिटर्निंग ऑफिसर चुन लो, या तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके बोलो कि सर मेरी सोसाइटी है, हमको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करते, तो उसका जो खर्चा होगा वो आपको सोसाइटी को देना है उसको। तो सर आपस में अगर अपॉइंट करना है सोसाइटी के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर, तो इन दैट केस हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर? आप जनरल बॉडी के माध्यम से बुला लो मीटिंग। एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी, चेयरमैन वो लोग रहेंगे और पूरा जनरल बॉडी रहेगा, तो अपॉइंट कर सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, राइट? तो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट आप घर का कर सकते हो, उसका कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं। उसमें शर्त यही होती है कि वो जो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ही हैज टू बी व्हाट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल पर्सन। तो आपके रीडेवलपमेंट और वगैरह वगैरह के लिए आपको कानूनी तौर पे मैनेजिंग कमेटी का गठित करना जरूरी है। गठित नहीं किया हुआ है तो आप कोई भी कानूनी काम आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है। और कोई प्रश्न सेठी साहब आपका? नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू आशीष जी। मिस्टर पजारे साहब, आप पूछिए अपना प्रश्न। सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ पजारे हमारे पहले के स्पीकर रह चुके हैं, जिन्होंने सोसाइटी को कैसे डिसमिस किया जाए फॉर नॉट फॉलोइंग द कानून, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया हुआ था। उनका लेक्चर हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी मौजूद है। और नजदीक के दिनों में मिथेश पजारे साहब, जो अभी स्क्रीन पे पैज मीट के नाम से दिख रहे हैं, आते दिनों में वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स, गलत रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो सोसाइटी ने फाइल किया था, उसको कैसे नलीफाई किया, उसके बारे में वो लेक्चर देंगे। आते कुछ वेबिनार के दिनों में हम उनका लेक्चर रखने वाले। थैंक यू, ही हैज एग्रीड फॉर इट। तो उसके लिए फोरम की तरफ से आपका धन्यवाद।
और इसी साथ में मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूं कि जिस किसी को भी आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना हो सोसाइटी के बारे में, किसी भी इशू के बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए बाकी लोगों के साथ में, आपका भी मनोबल बढ़ाइए और बाकी जो दोस्त हमारे पार्टिसिपेट करते हैं वेबिनार में, जो हमारे वेबिनार के वीडियोस देखते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाइए। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो प्लीज सेंड मी ए प्राइवेट व्हाट्सएप एंड आई विल अरेंज फॉर योर वेबिनार। फजारे साहब प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। यस, ओके, मेरा सिंपल ऐसा क्वेरी है। मेरा ऐसा मानना है कि एजीएम कभी कैंसिल नहीं हो सकती, सिर्फ पोस्टपोन हो सकती है। इसीलिए एमसीएस एक्ट में या फिर जो अभी ऑर्डर आया उसमें द वर्ड कैंसिल और एल्स उसका प्रोविजन है क्या कि एजीएम कैंसिल कर सकते हैं या ओनली हम एजीएम पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसा मतलब होता है उसका? ओके, जैसे मैंने शुरू में ये बताया, टेक्निकल चीज है आपका क्वेश्चन, लेकिन मैंने शुरू में ये बताया कि एजीएम का डेट, टाइम और वेन्यू मतलब जगह फिक्स करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है और किसी को नहीं है। ना तो वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार को भी नहीं है, ना और किसी को भी नहीं है। कानून सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार मैनेजिंग कमेटी को देता है। तो अगर मैनेजिंग कमेटी किसी कारणवश, मानो 2-3 मैनेजिंग कमेटी गुजर गए, बीमार पड़ गए वगैरह वगैरह, और एजीएम की नोटिस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो अब उसको एजीएम को कैंसिल ही करना है या पोस्टपोन करना है। तो आप शब्दों को ना पकड़े, कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। पोस्टपोन का मतलब ये हो जाता है कि आपको 30 दिनों में कंडक्ट करना है, वो मतलब एडजर्नमेंट की वैल्यूएशन के हिसाब से 30 दिनों के अंदर आपको कंडक्ट करना है। आपने कैंसिल कर दिया तो वो नया जो तारीख है वो एजीएम की डेट तारीख, उसका जो कानूनी दायरा है, हक है, अधिकार है, वो मैनेजिंग कमेटी को। तो आप उसे कैंसिल का शब्द दे दीजिए या तो पोस्टपोन का दे दीजिए। लेकिन हाउएवर अगर आपने एजीएम शुरू कर दिया, टाइम पे, दिन और तारीख पे शुरू कर दिया, चेयरमैन के अधिकार के अनुसार चेयरमैन उस पर्टिकुलर एजीएम को कई कारणों से एडजर्न कर सकता है। उसके लिए उसको जनरल बॉडी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को है। एडजर्न कर देता है कि भाई मेंबर शोर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सेक्रेटरी बीमार पड़ गया, मैनेजिंग कमेटी में कोई जवाब देने वाला नहीं रहा, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, ये हो गया, वो कोई भी कारण, इमेजिनरी कारण सोच लो, मनमानी वाला कारण सोच लो आप, और वो कारण दिखा के आप एजीएम एडजर्न कर सकते हो। एडजर्न करने का जो अधिकार है सिर्फ चेयरमैन को है, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है। एडजर्न करने के पहले चेयरमैन को यह घोषित करना पड़ेगा कि मैं एजीएम को इस कारण से एडजर्न कर रहा हूं। कारण जैसे ये हो सकता है कि भाई 4 मैनेजिंग कमेटी शराब पी के आ गए हैं, मैं एजीएम कंडक्ट नहीं होने देता हूं, मैं शराबी नहीं हूं वगैरह वगैरह, तो मैं उस एजीएम को एडजर्न करता हूं। मतलब जो कारण है उसको उस एजीएम के मिनट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप एडजर्न कर रहे हो तो मिनट्स को रिकॉर्ड करना है, मिनट्स में, कि क्या कारण से आपने एजीएम को एडजर्न किया। क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि डिस्प्यूट के समय यही आपका कारण जो रिकॉर्डेड है वो काम आने वाला है। ठीक है, कोई और प्रश्न मितेश जी? हाँ, यानी हमारा सोसाइटी का एजीएम उन्होंने कैंसिल कर दिया जो 30th को होने वाला था। सो अभी जो नेक्स्ट एजीएम होगा दैट विल बी कंप्लीटली न्यू, एजेंडा भी अलग हो सकता है, करेक्ट? एजेंडा सेम भी रख सकते हो, अलग होगा, लेकिन नोटिस की तारीख और सारी चीजें जो है वो बदली हो जाएंगी। एजेंडा के आइटम्स आप सेम रख सकते हो, वो अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है, जनरल बॉडी को नहीं है। ओके सर, अंडरस्टैंड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर शिवा लोंडे। नमस्कार सर, 10 जुलाई को हमारा एजीएम हुआ था सर, और 10 जुलाई को हम, ओके, हाँ, तो एजीएम में हमने जो जिन मुद्दों के ऊपर, खर्चे के ऊपर आक्षेप लिया था, डिस्प्यूट किया था, तो वही उन्होंने जब 22 जुलाई को हमें एमओएम प्रसिद्ध किया गया तो उसमें वो खर्चे 5 दिखाए। हमने उसके ऊपर आक्षेप जो दिया था, डिस्प्यूट किया था, तो कमेटी ने उसको पास किया है कि ये पैसे खर्चे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है और एक खर्चे को सहमति दी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? ओके, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग एमओएम, करेक्ट? तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब है पिछला एजीएम का मिनट्स ऑफ मीटिंग होगा। नहीं, इसी 10 जुलाई को जो
10 जुलाई का जो मीटिंग हुआ था ना सर, ये एजीएम, अच्छा, उसको एमओएम ऑलरेडी मिल चुका है आपको? हाँ वही एजीएम उन्होंने 22 जुलाई का दिया हमें। तो एजीएम में चेंज किया उन्होंने, हमने जिन जिन खर्चों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर जो ये लिया था, डिस्प्यूट किया था ना, तो उन्होंने सबको जब डिस्ट्रीब्यूट किया एमओएम, उसमें चेंज करके दिया कि ये मुद्दे पास हुए, ये खर्चे पास हुए करके। अभी कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, ज्यादातर ऐसा हर सोसाइटी में करते हैं। टिपिकली मोस्ट सोसाइटीज, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटीज में इस तरह की बदमाशियां होती है। हमारे वेबिनार में भी आप सुनेंगे तो कई मेंबरों के ऐसे कंप्लेंट्स हैं। अब इसका समाधान करने के लिए ऐसा है कि अगर मिनट्स गलत बना हुआ है तो आपको उसे कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज करना है। चैलेंज करने के लिए मिनट्स लगेगा आपको, साथ में आपके साथ में कम से कम 3-4 और लोग लगेंगे जो एफिडेविट पे ये कह सके कि ये चीजें पास नहीं हुई थी, ये गलत है, मैं एजीएम में हाजिर था। तो 4-5 लोग आपको चाहिए होंगे, वो लोग होने चाहिए जो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे और उनका अटेंडेंस में सिग्नेचर था। अगर वो ऐसा कहते हैं एफिडेविट के माध्यम से कि मैं इस मीटिंग में प्रेजेंट था, ये पास नहीं हुआ है और इसको सेट असाइड करना चाहिए या क्रैश करना चाहिए इस मिनट्स को या रेजोल्यूशन को। कोऑपरेटिव कोर्ट सुनवाई करती है, मैनेजिंग कमेटी को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि भाई ये जो कंप्लेंट आया हुआ है मेरे पास में, इसका आप जवाब तलब दो। तो उसमें मैनेजिंग कमेटी बोल सकती है कि मैंने ये पास किया हुआ है। ये हमारे दूसरे और 10 विटनेस हैं जो ये कहते हैं कि ये पास हुआ है। आपने 5 विटनेस खड़े किए, वो शायद 10 विटनेस कर दें, क्योंकि वो मैनेजिंग कमेटी वो सब बदमाशी करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरह से कानून कचहरी का मामला चलेगा। अगर आप ये प्रूव कर पाए, समझो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग चुपचाप कर लिया जेब में मोबाइल रख के या रिकॉर्डर रख के वगैरह, या तो कोऑपरेटिव कमिश्नर के सर्कुलर के अनुसार आपने सोसाइटी में वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ हो, या आपने रजिस्ट्रार से परमिशन लेके अपना खुद का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ हो, या तो आपके मीटिंग की जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है विथ माइक्रोफोन और उसमें रिकॉर्डिंग कैप्चर हुआ, कहीं ना कहीं आपको सबूत जमा करना है उस चीज का। शुरुआत होगी सोसाइटी को नोटिस देना है कि आपने ये मिनट्स गलत बनाया हुआ, ये चीजें नहीं थी, और वो 5 लोगों का सिग्नेचर लेना है और उनको बोलना है कि भैया आप अमेंड करो, नहीं तो मैं इसको एक तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगा फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, चीटिंग एंड फ्रॉड। ये 3-4 सेक्शन लगेंगे आपको। 5 के सही से आप क्रिमिनल एफआईआर भी कर सकते हो और कोऑपरेटिव कोर्ट में ग्रीवेंस पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। आपके पास अगर सबूत है तो आपके फेवर में ऑर्डर पक्का आ जाएगा। कानून में देखो कैसा है, एक तराजू की तरह है, उसका ज्यादा सबूत है ना, तो उसके फेवर में आएगा। एनीवे सर, और कोई प्रश्न है आपका? छोटा एक प्रश्न था दूसरा सर, इसके बारे में, एजीएम के बारे में दूसरा प्रश्न मेरा 154(23) के अनुसार हमारा सुनवाई हुआ था, कमिटी ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। 154B 23/3 सुनवाई झाली होती, 1 महिना झालाय, तो रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया, उसके लिए कुछ टाइम लिमिट रहता है क्या सर? सिटीजन्स चार्टर, नागरिकांचं सनद या सिटीजन चार्टर का हिंदी या मराठी अनुवाद आप कर लें। किसी को पता है कि सिटीजन चार्टर को मराठी में क्या बोलते हैं? एनीबडी? नागरिकांची सनद। नागरिकांची सनद, उसके अंदर ये सारी चीजों का रेमेडी करने का काम मैक्सिमम 15 डेज दिया हुआ है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, लेकिन नॉर्मली डेप्यूटी रजिस्ट्रार वैसे काम करता नहीं है। उसके विरोध में आप तकरार कर सकते हो डायरेक्टली मिनिस्ट्री में कि भाई ये अर्जी ये तारीख की थी, सिटीजन चार्टर के अनुसार ये तारीख पे होना चाहिए था, इसने काम नहीं किया हुआ है, इसके लिए इसके ऊपर रेस्पेक्टिव कानूनी कार्यवाही, डिलिव्हरेशन ऑफ ड्युटी इसको बोलते हैं, ड्युटी बरोबर नाही केलं किंवा पब्लिकला त्रास दिला वगैरह वगैरह, ये सब आप ले सकते हो। हमारा एक वेबिनार भी हुआ था मोहम्मद अफजल साहब का, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट के अंतर्गत कानून बनाया हुआ था। उनका वेबिनार भी हमारे वेबसाइट में मौजूद है। उसका एप्लीकेशन डाल के आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। वेबिनार देख लीजिए, आपको काफी हेल्पफुल होगा वो चीज का।
प्रिवेंशन ऑफ डिले करके हमारे वेबसाइट में उनका वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कुणाल ओतारी। Hi sir. Mr. Kunal Otari, please go ahead. Yes, Hello. yes sir. Can you listen me? Hello. Yes, please go ahead. Yes sir. Sir, Mr. Kunal, अभी please क्या go है? ahead. Yes. जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना सर, वहाँ पे का जो सेक्रेटरी है वो क्या करता है, अनरीजनली वो झगड़ा निकालता है। तो झगड़ा निकालने के बाद मतलब पर्सनली वो झगड़ा निकालता है, झगड़ा निकालने के बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। तो उसको कैसे टैकल करना है, और हर बार वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ कलेक्ट करने के लिए वो ये करता है झगड़ा। देखिए सर, ऐसा है कि इंडियन पेनल कोड मतलब पुलिस खाते का जो एक कानून है, उसमें आपने अनिल भाई को जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। हाँ ठीक है ना, कस के 2-3 थप्पड़ लगा दिया आपने उसमें, तो उसका पेनल्टी जो है 1500 रुपए का है। ओके। आप ठीक है, ये एक बात हो गई, इसको साइड में रख दीजिए आधा मिनट के लिए। अभी आपके खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है, या सेक्रेटरी जो भी कुछ कर रहा है, अगर आपके पास और 2-3 विटनेसेस हैं, साक्षी है, गवाह है, जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरे ऊपर चिल्लाता है, मुझे डराने धमकाने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह, और न्यूसेंस क्रिएट करता है, या मुझे परेशान करता है, मतलब हैरासमेंट करता है, तो आप पुलिस स्टेशन में ये 3-4 गवाहों को लेकर जाके आप उसके खिलाफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं फॉर ऑफेंसेस। इंडियन पेनल कोड के ऑफेंसेस हैं, न्यूसेंस हो गया, हैरासमेंट हो गया, इंटिमिडेशन हो गया, ये 3-4 सेक्शन में आप उसके खिलाफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए गवाह जरूरी लगेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो सोसाइटी में जो मेंबर्स है वो बाकी के इन्वॉल्व नहीं होते। उन्होंने अभी परसों एक मीटिंग लिया था, उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी का जो इश्यू है हम लोग वो सिर्फ डिस्कस कर दें, और बाद में आपका दोनों का जो झगड़ा है वो आप दोनों देख लो, वो आप दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। अभी वो बीइंग सेक्रेटरी वो क्या करता है, वो प्रेशराइज करता है बाकी के सब मेंबर्स के लिए, तो कि तुम इसमें मत पड़ो, मेरे को इसको भगाने का यहाँ से, तो मतलब वो सब उसका ये माइंडसेट ये इधर चल रहा है। तो उसको कैसे डील करूँ वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के चक्कर में पड़ने का तो टाइम वेस्ट जाता है। आप अगर ऐसा, अब ये जो प्रॉब्लम है ये लगभग हर कानून कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ना नहीं है, ये तो खैर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा हुआ है। लेकिन जब तकलीफ होती है तो इन दोनों के पास में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर आप ये सोचें कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है, मैं दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट कर जाऊं, लेकिन दूसरी सोसाइटी में जाने के बाद में भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वहां पे इसी तरह के और लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर सोसाइटी की है, खाली आपके सोसाइटी की नहीं है। आप अगर खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उसको ये सब धमकाते हुए कर, तो आप अपने खुद के दम पर भी आप पुलिस में एफआईआर कर सकते हो, और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये एफआईआर कर रहा हूं मैं, ये आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, आप इस पे इन्वेस्टिगेट करो वगैरह। एक बार पुलिस बुलाएगी, आप 2-3 लोगों का नाम भी लिखा देना कि भाई ये वहां पे साक्षी थे उस समय, वो आपको हेल्प करे या नहीं करे, आप उनका नाम लिखा दो, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो। एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो आदमी सहम जाता है कि नहीं ये तो अभी पुलिस तक मैटर पहुंच गया। जैसे आपको नहीं जाना पुलिस स्टेशन, यकीन रखिए तो सेक्रेटरी को भी नहीं जाना है। ओके। अभी सर ये इसके अंडर कोई केस वगैरह कुछ हो सकता है, मतलब मैं अगर उसको अभी क्या है वो रिकॉर्डिंग वो प्राइवेटली रिकॉर्डिंग करता है, अभी क्या होता है वो उसको सोसाइटी को वो दिखाता है कि मतलब ये बंदे यहाँ पे उसको इलीगल कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया है, मेरी वाइफ यहाँ पे ट्यूशन लेती है, तो वो फ्लैट में ट्यूशन लेती है, तो वो इलीगल है या लीगल है वो मेरे को जानना था। सेकंड थिंग क्या है वो फ्लैट के अंदर ट्यूशन लेना परफेक्टली लीगल है, प्रोवाइडेड वो कमर्शियल ग्रेड का ना हो, आपने उसका एडवर्टाइजिंग बोर्ड कहीं नहीं लगा रखा हो। ओके। अभी सेकंड थिंग क्या है, वो मेरा फ्लैट है मेरे सासू के नाम पे,
तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग उसको हफ्ते में 3 या 4 दिन मिलने जाते हैं। तो वो उसने सामने वाले सोसाइटी की मीटिंग में रखा था कि ये हमेशा यहाँ ये मतलब ये यही रहते हैं। ऐसा कुछ लिखा है किधर पे कि मतलब यहाँ पे अगर मैं सासू के घर पे रहता हूँ, लेट से मैं बोल देता हूँ सामने से कि घर जमाई बन के रह गया, तो कोई प्रॉब्लम रहता है? मतलब क्या है वो साहब ऐसा है कि अननेसेसरी। ठीक है, आप दूसरा क्या बोल रहा है उसकी सुनने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा तो बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप में भी इस समय, इतने लोग हैं, आपके सोसाइटी में इतने लोग हैं, आपके सर्कल में इतने लोग होंगे वगैरह वगैरह। तो लोगों की बात सुनते रहोगे तो फिर आप खुद परेशान हो जाओगे और पक्का आपको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आप सासू के घर पे जाते हो लेकिन आप अपनी बीवी को लेकर जाते हो। सासू का मतलब है उसकी बेटी उससे मिलने आ रही है, उसकी बेटी का परिवार भी उसके साथ में मिलने आ रहा है। तो इसका कोई ऑब्जेक्शन लेने का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर कुणाल फॉर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन is by मिस्टर प्रसाद दिगे। मिस्टर प्रसाद दिगे, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय परेश के शाह। परेश के शाह। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर। सर एक चीज पूछना था, जैसे आपने बोला पूरा एमसीज दे आर ऑल मिस्टीरियस एंड ये सब कुछ है, दैट्स राइट, एंड मोर और लेस एवरीवेयर इट इज द सेम। Just I need to ask a question that in case there are some questions, there are some issues which are very of थोड़ा precarious nature का रहता है, या जिसके अंदर में controversies, managing committee ने controversial decisions लिए हैं, and the members would like to discuss that matter in the in the AGM, and would like to put that matter in the AGM, but intentionally the managing committee will not like to add it in the agenda of the meeting of the AGM. How can that item be incorporated in the agenda of the AGM, sir? Okay. That's number one. And number two is the questions which are being supposed. I've got capacity. I've got mental capacity only for one question at one time. मेरी बुद्धि थोड़ी कम चलती है सर इसमें। नहीं सर, सॉरी सर। तो शुरू में मैंने बताया कि एजेंडा का बनाने का अधिकार किसको है, क्या आपको पता है परेश सर? अभी मैं आपसे 1-2 मिनट बातचीत करना चाहूंगा, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, वो एमसी ही डिसाइड करेगी सर। एमसी का है, लेकिन जनरल बॉडी का 1/5 मेंबर जी, 1/5 मेंबर यानी 20% मेंबर अगर एक एजेंडा पे साइन करके देते हैं कि वी रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस एजेंडा in the special general body meeting और annual general body meeting, और उसको सबसे बेस्ट क्या होगा कि एक एजेंडा बना लो, 1 या 2 एजेंडा जो भी आपका है, प्रॉपरली कानून के दायरे के अंदर में होना चाहिए। रजिस्ट्रार को पत्र लिख दो कि भाई ये एजेंडा लेने का एजीएम में या एसजीएम में लेने का मैनेजिंग कमेटी को डायरेक्शंस इश्यू करो अंडर सेक्शन 154B 27, बरोबर। Okay. तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालना है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154/27 रेड विथ सेक्शन 76। okay. और उसमें आप बोलो कि भाई हम लोग 1/5 मेंबर है, मिनिमम 1/5 मेंबर है, हम ये चाहते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर एजेंडा जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाए, ऐसा डायरेक्शंस आप मैनेजिंग कमेटी को दो। डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपको डायरेक्शन देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो दे देगा, मैं भी थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा जैसा भी है वो डायरेक्शन देने के बाद में मैनेजिंग कमेटी उस डायरेक्शन और आपके एजेंडा को जनरल बॉडी मीटिंग में लेने में मजबूर हो जाएगी। आपको जो पर्पस था वो अचीव हो जाएगा। That's right. अब दूसरा तरीका ये है कि अगर एसजीएम में है तो आप अपना एजेंडा नहीं ले पाओगे अलग से, right. लेकिन एजीएम में अगर है और चेयरमैन आपको लास्ट एजेंडा में अलाउ करता है, एजेंडा होता है ना लास्ट में, एनी अदर मैटर विद परमिशन होता है चेयरमैन, अगर उसमें अलाउ करता है तो वो नॉर्मल रूटीन कोर्स में आ जाएगा जी, और वो एजेंडा के पर जो रेजोल्यूशन बनेगा, हाँ, इफ ही हैज टू अलाउ इट,
Okay. Okay. All right. Now, So, in but our earlier AGM video, I had said कि AGM को कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, यानी कि चेयरमैन को। अगर चेयरमैन प्रेजेंट है तो वो प्रिसाइडिंग, और उस प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग को बनाने के लिए आप जनरल बॉडी में से, इसमें किशन बोर्ड है, उस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग के शुरू में सारे जनरल बॉडी के हमारे आपस का ही एक जनरल बॉडी का मेंबर आज का मीटिंग का प्रेसिडेंट बनेगा। अगर आपका एक मेंबर मीटिंग का प्रेसिडेंट बन जाता है तो आपको ये जो आप एजेंडा बोल रहे हो ये आप लास्ट में आप लेके चर्चा कर सकते हो। तो इस तरीके से मैनेजिंग कमेटी मजबूर हो जाएगी उस एजेंडा पे डिस्कस करने के लिए और रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और कोई प्रश्न है मिस्टर शाह? No sir, this is despite 154(b)(27) deputy registrar के पास में application नहीं लिया, उसके बावजूद भी we can do this way sir. This plan B. There are three modes. One mode is that application read with section 76. Right. One is if your chairman allows you to take up this agenda in his last authority to. Right. और मीटिंग में शुरू होने के पहले ही आप अपना चेयरमैन इंस्टॉल कर दो, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग इंस्टॉल कर दो। ओके। जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग इज द सोल अथॉरिटी अंडर हुज अथॉरिटी द एजीएम कैन बी कंडक्टेड। उसमें चेयरमैन बाकी मैनेजिंग कमेटी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और पिछले एजीएम के वेबिनार में हमने ये भी बताया था जी कि मीटिंग में से किसी को भी वो बाहर निकाल सकता है। ओके, ठीक है, आप वेबिनार को सुन लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा सर। इट इज क्वाइट सिंपल। और हमने पिछले एजीएम में काफी सरलता से एक्सप्लेन किया हुआ था, सारी चीजें आ गई है। और आज का हमारा वेबिनार का मुद्दा था एक्सटेंशन ऑफ द एजीएम। Sorry sir to have asked you out of the syllabus questions sir, but I appreciate it for your reply sir. Thank you so much. सर वीडियो है ना हमारे वेबसाइट पे, देख लीजिएगा फुर्सत में। Sir, last week I was not present, so I'm sorry for that sir. But anyways, I'll definitely have. Thank you so much sir. Mr. Ganpat Rathod, you wanted to ask something? राठौड़ बोल रहा हूँ। राठौड़ साहब पूछिए आपका प्रश्न। हाँ, जॉइंट रजिस्ट्रार से अपॉइंट हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे यहाँ पे इलेक्शन करवाया। और हाँ राठौड़ साहब आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, 23 मार्च को कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई एक्चुअली। इसके पहले ये था, एडमिनिस्ट्रेटर था, और अक्टूबर 19 से एडमिनिस्ट्रेटर था एक्चुअली। उसने मतलब 21 में कोई एजीएम वगैरह का कोई किया नहीं। 22 में भी अभी तक मतलब ये कि कोई 23 मार्च को ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। और उसके बाद में कमेटी भी किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और अभी तक एजीएम का कोई मतलब ये डिक्लेयर नहीं किया डेट वगैरह। बाई चांस मतलब अभी 29 को तो ये हो गया, अपना एक्सटेंड हो गया डेट उसका। तो हमारा गुड लक है एक्चुअली। पर हो ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी तक मतलब वो इसको कमेटी को चार्ज नहीं दिया है। और उसके लिए हमने मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार को लेटर भी लिखा कमेटी ने कि वो 160 सेक्शन 162 में एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्ट करे कि वो चार्ज है वो सोसाइटी को दे। और कमेटी मतलब ये है, चेयरमैन और सेक्रेटरी है, ये 160 सेक्शन 162 में डायरेक्शन है वो नहीं आ रहा है। 4 रिमाइंडर हम मतलब डाल चुके हैं लेटर लिखने के बाद में, तब भी अभी तक ये नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से एजीएम के लिए भी कोई इनिशिएटिव है वो नहीं ले रहा है। और नहीं मतलब एक्चुअली वो 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, और अभी ये 22 का भी मतलब कुछ होगा या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। मीनवाइल मतलब the administrator is very adamant or not leaving the society actually.
not giving the charge, handing over the charge. और उसका ये ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, बैलेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं मतलब। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब सोसाइटी का क्या फेट है समझ में नहीं आ रहा है। वो कमेटी और चेयरमैन सेक्रेटरी है वो उसको ब्लेम कर रहे हैं कि उसने चार्ज नहीं दिया, तो हम कैसे करें। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये कोई मतलब करेक्ट ये है अप्रोच है उनका। मीनवाइल मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार भी कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। उसने 1 महीने के अंदर में मतलब उसको चार्ज हैंड ओवर करना चाहिए था, पर अभी तक किया नहीं, जबकि कमेटी बन गई है 23 मार्च 2022। अभी आगे मतलब एजीएम के लिए क्या करने का है। पिछले 3 सालों से तो 2 साल से हो ही नहीं रही। 20 में नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ एजीएम। बैलेंस शीट, अकाउंट वगैरह, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नथिंग, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं। ऑडिट तो दूर की बात है। जी गणपत जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ शायद हेमंत सर के पास आवाज नहीं जा रही है या टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर तो जॉइंट रजिस्ट्रार ने बिठा दिया आपके सोसाइटी में, और कमेटी भी फॉर्म, इलेक्शन भी हो गया ना, इलेक्शन हो गया। राइट। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके बात पे आ रहा हूँ। सॉरी, हाँ। जैसे कि इलेक्शन हो गए, आपकी कमेटी भी बन गई है जी, बट अभी तक रजिस्ट्रार के हिसाब से जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, एक्सटेंशन होना चाहिए ना सर, उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। उसको कोई एक्सटेंशन वगैरह तो है नहीं। हमने पूछा उसको, कोई एक्सटेंशन बताओ, तुम्हारे को एक्सटेंशन मिला है क्या। इनिशियली वो 6 महीने के लिए ये अपॉइंट हुआ था। नहीं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार का ऑर्डर होगा ना, कुछ ऑर्डर दिया होगा ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने, या गाइडलाइन दी होगी। तो एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है मतलब अपना एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही है सर। ज्वाइंट रजिस्ट्रार के गाइडलाइन पे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया होगा पहले, बाद में उसने आपके उस समय तो उस समय जो ऑर्डर पास किए होंगे ना रजिस्ट्रार ने जी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर पास की होगी उसकी डिटेलिंग देखिए, उसमें उसका टर्म पीरियड कहां तक दिया हुआ है। पहली चीज, रिटर्निंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर का टर्म पीरियड वहां पे मेंशन किया होगा। 6 मंथ है, 6 मंथ्स के लिए दिया हुआ है। उस 6 मंथ्स में आपकी कमेटी फॉर्म कर दी उन्होंने? नहीं, वो एक्चुअली मार्च अप्रैल में फिर ये कोरोना का इशू हो गया एक्चुअली। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से फिर वो तो एज ऑफ नाउ आपका सिचुएशन ऐसा है कि वो टाइम लैप्स हो चुका है, और हाँ, और उसके बाद आपके यहाँ पे उन्होंने ये अपना इलेक्शन भी करवा के कमेटी भी फॉर्म करवा दी है। कमेटी फॉर्म बट वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, ऑफिस हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको ज्वाइंट रजिस्ट्रार के अंडर जाना होगा, एक एप्लीकेशन करना होगा और उनको सिचुएशन बतानी होगी। या तो फिर वो लाइबल करें, वो जो भी रिटर्निंग ऑफिसर आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उसके ऊपर एक्शन ले, बिकॉज उनकी ड्यूटी बनती थी आपके यहाँ पर इलेक्शन करवाने की और एजीएम करवाने की। और एक तो एक्सटेंशन ना होने के बाद में भी उन्होंने एक्सटेंशन ना होने के बाद में भी उन्होंने चेयर पकड़ के रखी, तो कौन से बेस पे पकड़ के रखी और उस टाइम पीरियड का उनके पास क्या जवाब है, ये आपको ज्वाइंट रजिस्ट्रार के सामने ही आपको कंप्लेन करनी होगी। और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के हाथ में है कि वो उनके ऊपर एक्शन लेंगे या तो आपको सोल्यूशन देंगे। हाँ सर, एक्चुअली ऑलरेडी हमने मतलब ये कि ये कमेटी, जो नई कमेटी आई है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और बाकी मतलब कमेटी मेंबर ने भी एप्लीकेशन की, मतलब लेटर दिया जॉइंट रजिस्ट्रार को कि ये चार्ज हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, और सेक्शन 160 सब सेक्शन 2 उसमें जॉइंट रजिस्ट्रार को पावर है कि वो उसको डायरेक्शन दे एडमिनिस्ट्रेटर को
कि चार्ज हैंड ओवर फोर्थ विथ मतलब ही शुड हैंड ओवर द चार्ज ऑफ सोसाइटी। पर एक्चुअली वो लेटर लिख के उसके बाद में हमने 4 रिमाइंडर भी डाले उसको, और मतलब पर्सनली भी मतलब सामने भी जॉइंट रजिस्ट्रार मैडम है हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में, उनके सामने मतलब वो हमने रिक्वेस्ट भी किया। पर उधर तो मतलब वर्बली तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं वो उसको मतलब बोलती हूँ डायरेक्शन, पर फिर उसके बाद में भी मतलब वो कुछ हो नहीं रहा है बस। अच्छा, मीनवाइल मतलब यूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ अननोन पर्सन को लेकर के कुछ सोसाइटी के 1-2 मेंबर है, उनके साथ में आकर के पता नहीं वहां पे वो रिकॉर्ड के साथ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो बहुत ही मतलब इश्यूज हो रहे हैं एक्चुअली, और कमेटी को बन करके अभी 6 महीना हो गया, मोर देन 6 मंथ एक्चुअली, और वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने वो कमेटी को अप्रूव किया हुआ। ज्वाइंट तो अगर गणपत जी इसका अगर आपको सोल्यूशन ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास बार बार जाने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मैं रास्ता बताता हूं आपको। अगर आपका ऑफिस है, सोसाइटी के ऑफिस है जहाँ पे सारे ऑफिस बेरर रखे जाते हैं, हाँ सर, हाँ ना, तो वो तो ऑफिस है तो उसको सोसाइटी अपने कब्जे में ले ले और उस पर अपना लॉक लगा दे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करें, आप उसको एंट्री करने से मना कर दें, बिकॉज उसके पास कोई लीगल ये नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है। सो एटलीस्ट आप वहां पे लॉक लगा के वो सोसाइटी का ताला चाबी अपने पास कमिटी रख ले। इन केस अगर आगे जाके कुछ एक्शन लेना होगा तो वो कौन से बेस पे लेंगे, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को जवाब देना पड़ेगा, और कौन से बेस पे एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी के जो मैनेजिंग कमेटी है वो तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अप्रूव करके रखी हुई है। सो आपके पास तो वो आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप अपने सोसाइटी के ऑफिस में ताला चाबी मार के रखें और किसी भी ऐसे अनवांटेड पर्सन को आने से रोकें। ये अब सोसाइटी की जवाबदारी है कि वो सोसाइटी की जिम्मेदारी ले, चाहे फोर्सफुली ले, और अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेटर आके कुछ नौटंकी करता है या बोलता है या जो भी है ज्वाइंट रजिस्ट्रार आके बोलता है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि कौन से बेस पे ये विदाउट एक्सटेंशन आकर आपके सोसाइटी में बैठते हैं या काम करते हैं। एक बार सर मतलब कमेटी फॉर्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो उसके बाद में तो मैं समझ गया सर, नहीं मैं समझ गया सर, बट कभी कभी क्या होता है, घी अगर सीधी उंगली से नहीं आ रहा है, नहीं निकल रहा है, तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। आप अगर दूसरा वे भी यूज करते हैं। मिस्टर गणपत, वी विल मिस्टर आशीष जी, यस सर, आशीष जी, going to be a never ending issue. मिस्टर गणपत जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके आशीष जी, मैं आपसे एक मिनट के लिए चर्चा करना चाहूंगा। कई सोसाइटियों में ये होता है कि भाई हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर आ गया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर जा नहीं रहा है। मिस्टर गणपत राठौर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, थैंक यू। तो और हमारा इलेक्शन भी हो गया है वगैरह वगैरह, और 2-3 साल से ही नहीं गया हुआ है। मुद्दा ये आता है कई लोगों को कि भाई 6 महीने का लेटर आया हुआ है, राइट। तो एक प्रश्न ऐसा आता है चर्चा के विषय में कि एडमिनिस्ट्रेटर आके 6 महीना हो गया उसका, भाई 30 जुलाई को उसका 6 महीना हो गया, अब वो ऑफिस को लॉक लगा के उसको चले जाना चाहिए। है करेक्ट? क्या कहते हैं आशीष जी? मेरा पीरियड पूरा हो गया, अब मैं ऑफिस में आ सकता हूं जब तक मुझे एक्सटेंशन लेटर नहीं मिलता। एग्जैक्टली, आइदर ही शुड गो फॉर एक्सटेंशन। तो मुझे क्या करना चाहिए कि सोसाइटी का जो कार्यभार है उसको ताला चाबी लगा के निकल जाना चाहिए मुझे। नहीं, पर प्रश्न ये आता है आशीष जी कि एक्सटेंशन नहीं मिला है मुझे, एक्सटेंशन का प्रोविजन नहीं है, बट मैं फिर भी आपसे चर्चा कर रहा हूं कि एक्सटेंशन नहीं मिला हुआ है उसे, तो क्या करना चाहिए? क्या उसको ऑफिस में ताला चाबी लगा के सोसाइटी का कार्यभार बंद कर देना चाहिए? पगार पानी जो दे रहा है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, स्टाफ का सैलरी है वगैरह वगैरह, क्या उसको बंद कर देना चाहिए? प्रश्न ही उत्पन्न हो रहा है, तो आपका क्या विचार है इस पे? वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, बट एक लिमिट तक ही जाएगा सर। वो मतलब अगर
मेरे प्रश्न और अगर और कोई समझे हो तो दे आर ऑल्सो। नेक्स्ट प्रोविजन तक तो सर वो बना रह सकता है, नेक्स्ट प्रोविजन तक, बट वो नेक्स्ट प्रोविजन भी एक प्रोसेस में होना चाहिए, ये नहीं कि वो छोड़ दिया गया एज इट इज और सालों साल चले जा रहा है। एक प्रोसेस में डालकर वो नेक्स्ट एक प्रोविजनल जैसे मेंबरशिप होते हैं, प्रोविजनल जैसे कमिटी होती है, उस तरीके से काम तो डेफिनेटली कर ही सकता है, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो अभी वापस घूम फिर कर वही प्रश्न आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, ऑर्डर में लिखा है 6 महीना, 6 महीना पूरा हो गया। मिस्टर गणपत प्लीज आपके माइक्रोफोन को आप म्यूट कर दीजिए। मिस्टर गणपत राठौर अपने माइक्रोफोन को आप म्यूट कर दीजिए। तो 6 महीना हो गया है और सोसाइटी के मेंबर बोल रहे हैं कि भाई ऑर्डर में तो 6 महीने लिखा था, चलो हमारे सोसाइटी से बाहर निकलो, इलेक्शन हुआ नहीं है, हैंडओवर हुआ नहीं है, लेकिन तुम बाहर निकल जाओ। तो वो बोलता चलो ठीक है भाई, हम ऑर्डर का पालन करते हैं, मैं बाहर निकल जाता हूँ। इलेक्शन हो गया। Mr. Ganpat Rathore, we have already answered your question. We are not discussing your matter. We are discussing something which is a general thing for everybody. So please put your microphone on mute. Please put your microphone on mute. Do not interrupt now, please. Yes, आशीष जी, हम ये कॉमन टॉपिक है, डिस्कस कर रहे हैं सारे मेंबर के बेनिफिट के। राइट सर। तो मेरा प्रश्न वापस घूम फिर के वही आता है, एडमिनिस्ट्रेटर का अवधि है 6 महीना, ऑर्डर में लिखा है 6 महीने, सोसाइटी के मेंबर बोलते हैं इलेक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं, 6 महीना हो गया, तुम बाहर निकल जाओ। गॉट योर पॉइंट। और वो बोलता है कि ठीक है, ऑफिस को ताला लगाता हूं मैं और बाहर चला जाता हूं मैं। अभी इलेक्शन तो हुआ नहीं है अभी तक, किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो गया लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर भी नहीं आया, तो क्या उसको ताला लगा के निकल जाना चाहिए? तो सोसाइटी का कार्यभार जो है वो कौन देखेगा? नहीं, वो एज प्रोविजनल एक अरेंजमेंट के अंडर ही कैन कंटिन्यू, बट देयर शुड बी अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और ही शुड बी गेट एन एक्सटेंशन फ्रॉम जॉइंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार। ओके, एंड नाउ सिमिलरली देयर इज अ मैनेजिंग कमेटी, उसका भी कार्यकाल खत्म हो गया है, राइट, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे 250 मेंबर की सोसाइटी का इलेक्शन का ऑर्डर था, तब तक कर लिया। 250 मेंबर के ऊपर की सोसाइटी का लास्ट मोमेंट ने गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई 30 सितंबर तक इलेक्शन स्टॉप है आपका, ठीक है, और 2 दिन पहले ऑर्डर निकाला कि अभी सरकार ने ऑर्डर नहीं निकाला हुआ है, इसके लिए मैं इलेक्शन कमिश्नर होने के नाते मैं ऑर्डर देता हूं कि इलेक्शन का प्रोसेस फिर से शुरू कर दो। राइट, वैसे 2-4 दिनों में वो ऑर्डर आ ही जाएगा गवर्नमेंट का कि ये इलेक्शन का प्रोसेस भी डिले करो करके। लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं आता है तो क्या पुरानी मैनेजिंग कमेटी जो आज कुर्सी पे है, शुड दे लॉक एवरीथिंग एंड सिट होम? तो सोसाइटी कैसे चलेगी? ओके, सो देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ अथॉरिटी, कंटिन्यूटी ऑफ अथॉरिटी इवन विदाउट एन ऑर्डर। जो ऑर्डर दिया हुआ इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट टिल रिवोक्ड और टिल विड्रॉन और टिल कैंसिल्ड। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है 6 महीने के लिए और किसी कारणवश सोसाइटी में इलेक्शन नहीं हुआ है, तो ही इज ड्यूटी बाउंड लीगली टू कंटिन्यू till he actually hands over charge to the next incoming managing committee. The key words are till he actually hands over charge to the new incoming managing committee or board of administrator or new administrator or any authority which the registrar may appoint. So सारे दोस्तों को और जो वीडियो देखेंगे वो इनको ये बता दूं मैं कि एक बार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, एक बार मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट हो गई, तो इट विल हैव टू कंटिन्यू एंडलेसली टिल इट हैंड्स ओवर चार्ज टू द नेक्स्ट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी और टू द नेक्स्ट ड्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर और टू द नेक्स्ट ड्यूली अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक प्रश्न का उत्तर ही हो गया। अभी दूसरा, मैनेजिंग कमेटी, जैसे राठौर साहब का एक प्रॉब्लम था कि भाई मैनेजिंग कमेटी चार्ज नहीं ले रही है पिछले इतने दिनों से और एडमिनिस्ट्रेटर आता जा रहा है। अब सरकार काम नहीं करती है तो उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मैनेजिंग कमेटी जा सकती थी पुलिस स्टेशन में कि भाई हम ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मैनेजिंग कमेटी है, हमारे ऑफिस का ताबा, चाबी, रिकॉर्ड्स, पैसा, चेकबुक, फलाना ठिकाना इस आदमी के पास में है। इस आदमी मतलब अब उसका अधिकार तो खत्म हो चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि ये मैनेजिंग कमेटी है, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये भी बोल दिया कि भाई ये चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, ये ट्रेजरर है।
तो उसका अधिकार खत्म हो गया, तो वो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर फाइल करना चाहिए था कि भाई ये कौन अनजान आदमी आके हमारा सोसाइटी पे बैठ रहा है और मेरे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स खोल के देख रहा है वगैरह। तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ भी पुलिस में एफआईआर करना चाहिए था और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी। और अगर दोनों ही काम नहीं किया हुआ है तो उसका जवाब बाकी बाहर नहीं हो सकता। ये तो सरकारी काम है देखने का। Anyway, thank you Ashish ji for your opinion also on the same. We have got one more प्रश्न from Mr. प्रसाद दिगे। Mr. दिगे साहब पूछिए सर अपना प्रश्न। Mr. प्रसाद दिगे। Can you hear me? Can you hear me? Yes, please go ahead. हाँ, yes, हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ था और उस टाइम ऑथोराइज 2 मेंबर भी अपॉइंट हुए थे। तो उस टाइम में एक मेंबर का मेंटेनेंस चार्ज 15 लाख रुपया हुआ था, मतलब बैच के ऊपर बैच चढ़ के। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको सब माफ कर दिया, वेव कर दिया। उसको पावर है क्या एडमिनिस्ट्रेटर को ये मेंटेनेंस चार्ज वेव करने का? नहीं, इनका क्वेश्चन मैंने सुना सर। यस, इनका क्वेश्चन ऐसा था कि एक मेंबर के ऊपर ड्यूज बाकी थे एंड क्या उसको एडमिनिस्ट्रेटर वेव ऑफ कर सकता है? हाँ वही। yes, as per my knowledge, sir, administrator has no power to waive off the dues of the member. Even neither managing committee can waive off because it's a due, and they have to recover it from the member. उसको पावर बिल्कुल नहीं है वैसा एडमिनिस्ट्रेटर को? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वही हम लोग सोच रहे थे कि और वो उसने ऑर्डर भी दिया है, मतलब राइटिंग में दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा है, ये सेक्शन के अंदर तुमने 10% ज्यादा लिया, वो लिया, ये लिया। अरे ये करने वाले को करने के लिए उनको पावर है क्या? ये पावर किसको है मेंटेनेंस वेव करने की? नहीं, वेट। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो कंप्लीटली जो ड्यूज हैं वो वेव ऑफ करना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जो सोसाइटी ने अदर चार्जेस जैसे आपके मेंटेनेंस में हेरफार करके कुछ चार्जेस बढ़ा दिए होंगे, या जो आप इंटरेस्ट की बात करते हैं वो कम ज्यादा लगाए होंगे, या जैसे आपका 10% का ये लगता है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगते हैं, तो उस तरह से जो एडिशनल चार्जेस सोसाइटी ने एक्स्ट्रा गलत लगाए होंगे, उसको समझते हुए तो ठीक है, वो एक सेटलमेंट करना एक अलग चीज है, बट ड्यूज को कंप्लीटली वेव ऑफ करना इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो उसने ड्यूज भी कंप्लीटली वेव ऑफ हो गए उसमें? नहीं, कंप्लीटली तो पॉसिबल नहीं है सर। वो आपका पूरा मैटर समझे बिना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो पूरी तरीके से उसको माफ कर दे। लेकिन उसको ये सोसाइटी ने कम से 10% के बजाय 15% लिया होगा, तो 10% करके उसको कंप्रोमाइज कर सकता है वो। उसका रीजनिंग देंगे ना, उसका रीजनिंग देना पड़ेगा कि ये कहीं ज्यादा लग गया था इसलिए इसको हटा रहे हैं या इस वजह से इसको कम कर रहे हैं। हाँ, उसका एक रीजनिंग देंगे तो ही कम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात पूछनी थी, इंडेक्स 2 जो है वो इंडेक्स 2 अगर नहीं है तो वो मेंबर नहीं हो सकते हैं? इंडेक्स 2 तो सर जब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर प्रोसेस में होगा नहीं तो हो गया है, सब हो गया। इंडेक्स 2 अभी तक लिया नहीं है तो वो ये टेक्निकल पार्ट है सर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन डेप्थ जाकर। बट आपका जब पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद ही इंडेक्स 2 पे आपका नाम चढ़ता है और उसके बाद ही आप सोसाइटी के मेंबर बनते हो बाद में। नहीं, ये उन्होंने मेंबर बनाया है मुझे, सोसाइटी ने पहले ही मुझे मेंबर बना के शेयर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है विदाउट इंडेक्स 2, तभी इंडेक्स 2 नहीं लिया था। अभी वो सोसाइटी बोल रही है कि तुम्हारे पास इंडेक्स 2 नहीं है तो तुम मेंबर भी नहीं हो हमारे, ऐसा बोल सकती है सोसाइटी? तो टेक्निकल चीज है सर, इसको पूरा पेपर वर्क आपका तब तक रीड नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये 1 मिनट में तो समझने वाली बात नहीं है। सीधी बात है, रजिस्टर्ड डीड हो गया है, कन्विंस इंडेक्स 2 तो मिलना ही है, लेकिन अभी तो उसको अप्लाई किया नहीं है, तो उसके पहले सोसाइटी तुमको मेंबरशिप से कैंसिल कर सकती है फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग इंडेक्स 2। नहीं, सिर्फ आपका इंडेक्स 2 नहीं बना है या पूरी सोसाइटी के सारे मेंबर्स का इंडेक्स 2 नहीं बना? नहीं, मेरा अकेले का नहीं बनाया इंडेक्स 2, बाकी सबका है, हो गया है। कन्वेंस डेट भी अभी चालू है हमारा, वो भी अभी नहीं हो रहा है। टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ओके मिस्टर प्रसाद, यू विल कंक्लूड योर क्वेश्चन। शिवा लोंढे सर, मला जरा थोडा वेगळा प्रश्न विचारायचा होता। 25 सप्टेंबरला एक पेपरला न्यूज आली होती, मोफा कायदा बदल होणार। 25 सितंबर को
25 सितंबर को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आया था, ये न्यूज आया था कि मोफा एक्ट चेंज हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, ऐसे कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी होगी तो बताइए। ये कभी रिसेंट न्यूज आई थी, एक प्रपोजल है सिर्फ, इस पे बहुत ज्यादा ये इन डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली सिर्फ एक बात उठी है और उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे। उसके बाद कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना और हटाना इतना इजी नहीं होता है सर। मोफा 1960 से चला आ रहा है के बारे में और किसी दिन हम बातचीत कर लेंगे। इंटरनेट रहा है तो आज हम ये चर्चा। ओके कीर्ति जी, आप बोल कीर्ति जी बोलिए। कीर्ति शाह। हाँ देखिए, 25 को एजीएम हमारा हुआ। हाँ, तो उसका 14 दिन पहले नोटिस और आ गया था, एजेंडा सब। उसके बाद में वो लोग ने हफ्ते भर पहले 18 तारीख के लिए इंस्पेक्शन रखा था, डॉक्यूमेंट्स के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए। और वो दिन वापस वो लोग ने एक सर्कुलर भेजा कि एजेंडा 4 में 4A करके ऐड कर रहे हैं करके। उस दिन भी नहीं मिल रहा था, तो वो एजीएम में चल सकेगा। 14 दिन की नोटिस की एजीएम का बराबर आया था। उसके बाद में हफ्ते भर के बाद में एक सर्कुलर भेजा कि एजीएम में एजेंडा नंबर 4A को ऐड कर रहे हैं। तो वो एजेंडा चलेगा क्या? 4A ऐड किया वो, ठीक है। एक सब एजेंडा उन्होंने ऐड किया है, राइट। एक पॉइंट नंबर 4 में एक ए और ऐड कर दिया है। ठीक है सर, कोई कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन वो इश्यू बहुत बड़ा है कि 55 लाख रुपीस बिल्डर का हम लोग भर देंगे, वो एजेंडा डाला है ये लोग। बिल्डर का सोसाइटी बनने के पहले का 55 लाख रुपीस बीएमसी का था, वो डालने के लिए कमिटी को पावर देने का एजेंडा डाला है। तो उसके लिए एजेंडा डाला हुआ है सर, कीर्ति सर, एजेंडा डाला हुआ है और वो चीज एजीएम में डिस्कस किया जाएगा, जनरल बॉडी में डिस्कस किया जाएगा उस चीज को। वो तो ऑब्जेक्शन मैंने लिया, लेकिन वो डालना कायदे से डाल सकते हैं बाद में, ऐसा 6 दिन के पीरियड में नोटिस में, ओरिजिनल मीटिंग के अंदर। वो स्पेशल एजीएम नहीं है, वो एजीएम है वो तो। कीर्ति साहब, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया आपको, डेट टाइम जगह का जो अधिकार है वो डालने का करने का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल जिसपे प्रॉपर जनरल बॉडी को विचार विमर्श करना है तो उस पर के लिए मिनिमम 14 डेज देना आवश्यक है। और अगर फाइनेंशियल मैटर है, नॉन फाइनेंशियल नॉन पॉलिसी मैटर्स है, फाइनेंशियल पॉलिसी मैटर्स जैसे फॉर एग्जांपल रीडेवलपमेंट का इश्यू लेना है, कन्वेंस का इश्यू लेना, ये सब पॉलिसी मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होता है। उसके लिए मिनिमम 14 डेज नोटिस देना जरूरी है। और बाकी जो लास्ट एजेंडा होता है एजीएम के टाइम पे, एनी अदर मैटर्स विद उस एजेंडा में ले सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि अगर मुद्दा था तो वो एजेंडा नहीं ले सकते थे, उसे पास भी कर दिया हुआ है तो उसको डिस्प्यूट आप सिर्फ और सिर्फ में कर सकते हो और कहीं भी उसको नलीफाई नहीं कर पाओगे आप। पास तो नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि ऑब्जेक्शन लिया, सब मेंबर को हमने समझाया कि भाई ये 55 लाख रुपया बहुत बड़ा आइटम है और अपन उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर के सामने लड़ रहे हैं। तो कमेटी को क्यों पावर चाहिए कि हम लोग डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो, पावर कमेटी को दे दो। लेकिन वो एजेंडा बाद में डाला। अगर देना भी है तो प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तो उस पर चर्चा करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर एजीएम कोई एक्स्ट्रा एजेंडा, फाइनेंशियल मैटर, पॉलिसी मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंसर्ट किया है तो दैट इज नॉट अलाउड, तो वो कैंसिल हो जाएगा। वो अपने आप, आपने जैसे आपने बताया रेजोल्यूशन बॉडी ने पास नहीं किया हुआ, मिनिटेड है, तो एज इट किसी कारणवश वो एजेंडा ले लिया हुआ और पास कर दिया होता, उसको कोऑपरेटिव कोर्ट में उसको नल एंड वॉइड करवा सकते थे आप। एनीवे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई प्रश्न है आपका? दूसरा ये कि हफ्ते भर पहले इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, एजीएम का अपना बैलेंस शीट के इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था। उसमें मैंने साथ में लेटर लेके ही गया था कि ये खर्चे का मेरे को डिटेल दो। मेरे को उन्होंने फिर डिटेल दिया और मैंने उसको सर्टिफाइड कॉपी बिल्स के 240 रुपए का चेक देके ले लिया 2-4 दिन में। अभी उसके अंदर वो लोग डिफॉल्टर है, तो उसके लिए मेरे को अभी मिनट्स में वो लोग लिखते हैं कि नहीं मालूम नहीं मेरा कि मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, ये अनोनिमसली नहीं पास हुआ है, इसमें इतने इतने ऑब्जेक्शंस है, इसमें इतने इतने मिस्टेक है। तो अभी वो
मिनट्स आएगा उसके पहले मैं उसको ऑन द रिकॉर्ड के लिए मेरा राइटिंग में डाल के सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को भेज दूं लेटर? मिनट्स के आने के पहले आपका ऑब्जेक्शन नहीं है आपके पास में. हाउएवर यू कैन इन्फॉर्म द मैनेजिंग कमेटी. ये सारी चर्चा चीजें हुई थी, आप ये मिनट्स में डालना ना भूले, रिमाइंडर आप दे सकते हो. ऑब्जेक्शन लेने का आपका अधिकार सिर्फ मिनट होने के बाद में आएगा. अच्छा, नहीं ऑब्जेक्शन नहीं, मीन्स ऑन द रिकॉर्ड की मैंने दिया था, वो बाद में भूल पलटी नहीं मारे इसके लिए. तो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, आप उनको अच्छे से बोल दीजिए हमसे कि भाई मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मीटिंग में ये फला चीजें डिस्कस हुई थी, पास हुई थी वगैरह वगैरह, और आई रिमाइंड यू दिस थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर मिनट्स. दैट्स इट, नथिंग एल्स यू कैन डू राइट नाउ. ओके ओके, रिमाइंडर दे दूं खाली. ओके, यस यस, ओके. और कॉपी टू रजिस्टर लास्ट. हाँ, यस, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम. ओके ओके, थैंक यू सर. Okay, we will take up last question by Mr. Nayak and then we will conclude today's webinar. मैं दूसरा Mr. Rajendra Nayak. सर एक बात है, क्वेश्चन मेरा नहीं है ये, अपना सबसे पहला जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो मेरे हिसाब से वीडियो रिकॉर्डिंग अलग चीज है और उनको ये मीटिंग ऑन द ऑनलाइन का उनका इंटेंशन था, वो समझा रहे थे वो, और वीडियो रिकॉर्डिंग बोल रहे सर. हमने जवाब में उसको समझाया नहीं वो कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं या तो ऑनलाइन मीटिंग का बोल रहे हैं कि बाहर से मैं अटेंड कर सकता हूँ. वो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑनलाइन हो गया था वो. तो सबसे पहला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था उसका मुझे ख्याल आ गया, लेकिन अभी वो मैं बोल नहीं सका आपको तभी. नो प्रॉब्लम्स शाह साहब, यू आर ऑलवेज वेलकम टू पार्टिसिपेट. और अगर आप कोई मेंबर का उत्तर भी देना चाहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा एंड वी एक्सेप्ट यू, नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट सर. आपका जिंदगी का तजुर्बा काम आए और आप आपका तजुर्बा शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. मिस्टर राजेंद्र नायक. मिस्टर नायक, प्लीज अनम्यूट. Yes, Mr. Nayak, please go ahead. Yeah, sorry. नमस्कार सर. नमस्कार साहेब. सर माझा क्वेश्चन होता की मॅनेजिंग कमिटीमध्ये कोऑप करतात मेंबर, ते मॅनेजिंग कमिटीच्या मीटिंग मध्ये आपण घेऊ शकतो की जनरल बॉडी मध्ये प्रेझेंट केलं पाहिजे, रिझोल्युशन पास केलं पाहिजे? ओके, कोऑप्शनचा जो मुद्दा आहे ते फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मुद्दा आहे. हो, डिसीजन फक्त मैनेजिंग कमेटी घेऊ शकते. ओके, बोलता हूं ताकि बाकी लोगों को भी ठीक से समझ में. ओके, ठीक है. मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अगर मैनेजिंग कमेटी को कोऑप्ट करना है अगर, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी ले सकती है. कमेटी है ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मैनेजिंग कमेटी. कोऑप्शन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इसके लिए जनरल बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं ले सकती. हेंस कोऑप्शन का प्रोसीडिंग्स का जो कार्य है वो जनरल बॉडी के मीटिंग में नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कमेटी के मीटिंग में कर सकते हैं. कोऑप्शन के ऊपर हमने एक वेबिनार जो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी है, आप कोऑप्शन का वर्ड भी डालेंगे मिल जाएगा. ओके, उसमें आप सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा. वेरी सिंपल, बहुत सरलता से हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ. आप उसको डेफिनेटली बेनिफिट हो जाएंगे उससे. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. आपका नहीं ठीक है, थैंक यू. सो मैं सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वेबिनार को ज्वाइन किया और सपोर्ट किया, और पार्टिसिपेंट दोस्तों के परमिशन से आज का हम वेबिनार पे समाप्त करते हैं. अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर. सभी का धन्यवाद.